Introduction, one by one. ये last week बैठी रहा होगा. All of you come in the target. Hello, is it audible? Yes, Harsimrat and Priyanshu, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, fine. So, briefly introduce करना है, ठीक है? You are a boxing champion, Abhinav? Yes. At what level you are participating? State. Good, nice. तो state के बाद आगे state में कौन सी position रही थी आपकी? Bronze. Very nice. बहुत बढ़िया. Right. Which category? Under 59. Okay, very nice. Sit down. I'm not. I am 16. Recently, I have given to understanding. I am found in my situation. I am here to be coaching for NP. I am wishing to be around. You want to join Indian Air Force? Okay, sit down. Next. Here to what? Complete it, right? Yes. Complete it. I'm here for the coach. Right? I'm here to fulfill my aim of getting into Indy. Simple. Next. Sit down. I'm from geology, Congress, Madhya Pradesh. I'm 17 years old, and I'm thinking for taking the coaching of NDA, and my role is very good. Okay. Geology, which place? Tapudi. Okay. Sit down. Your name is? Vansh. I am here for my preparation of for NP. And I passed recently. I'm very good in sports, and I also play for state and champion in department. Very good. Right. Which school? Government Senior School? राजो? घाटचोट. घाटचोट से आप? घाटचोट में जो उसके खड़ के साथ में स्कूल है, उस स्कूल में से? पापा क्या करते हैं? टाटा मोटर्स में. घाटचोट में कहाँ पर घर? कौन सा एरिया? ओके. जानता मैं सबको जानता हूँ, किसी कैसे पूछी. जाते थे, वो स्कूल था, स्कूल में ग्राउंड था बहुत अच्छा. अब तो थोड़ा खराब हो गया. उस ग्राउंड में खेला मैं, बहुत क्रिकेट खेला मैं. ठीक है.
My father is a lecturer. My hobbies are reading, playing kabaddi, and swimming. Okay, very My good. Good, nice. Yes, sit down, yeah. I'm from Delhi. I completed my class 12 from Midland and did my own schooling from 9 to the hostel. I'm currently in for the English. I'm preparing school. I'm learning also in my school. Hockey, lawn tennis, and school. Right, and you're here to prepare for India examination, right? So which post you would wish to join? Indian Army. I'm preparing for the I was preparing my body and I'm preparing for everyone. Indian Air Force. Okay, right, right. Not wish to, wish to maybe बहुत सारी हैं. I wish to be PM of India, but practically, right? Aim, right? That's the difference between wish and aim, right? Wish तो कुछ भी हो सकती है. Wish तो वो मांगते हैं ना, wish मांग लो है, right? So my aim, right? My aim, my goal, my target, right? What I actually want to achieve, right? Okay, sit down. Yes, so we also have Harsimrat. Harsimrat with us. Yes, Harsimrat, can you hear me? Yes, sir. Yes, please introduce yourself. Sir, I am Harsimrat Kaur and currently I am living in Ropar. And I have studied in Shivalik Public School, Roopnagar, and currently I am doing the preparation for NDA. Yeah, you are in 12th standard right now, or you have completed your 12th? Sir, I have been appeared in 12th class and now my results will be announced on 5 May. Okay. 5th May. All right. And what are your hobbies? So basically, I have been very much connected to my sports also, and I have taken participation in handball. As well, I have some fascination towards drawing also, painting basically. Good, 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 nice. So we have another candidate, Priyanshu, with us. Good morning, sir. Good morning, good morning. Brief introduction. Sir, my name is Priyanshu Sharma. I am from Ambala city, and my aim is to join Indian Army. Indian Army. Okay, right. So, right. We are conducting these classes on dual mode, right? We all need to understand, right? And some of guys, they will be online, right? Some of you are sitting in the classroom. So we need to understand, ठीक है, कि जब हम कई बार ऐसा होगा कि आप नहीं सुन पाएंगे तो probably I'm talking to these guys, मतलब या बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हैं वो बात कर रहे होंगे तो probably आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी, ऑनलाइन कैंडिडेट्स, राइट? और जो ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है, राइट? तो यू कैन बी heard by the other classroom students. जो आप बात करेंगे क्लासरूम में जैसे बात करते हैं वैसे सुन सकते हैं, ठीक है? तो we need to understand what are the limitation. देख नहीं सकते हम आपको, कैमरा ऑन करेंगे तो प्रॉब्लम मैं आपको देख सकता हूँ, ठीक है? You guys will not be able to see the other students. Fine, okay. So starting off with the things, right? We all have one single aim, right? That's clear, right? What is the aim? NDA, right? So I just want to pass on some basic information about NDA, right? You all might be aware. पहले किसी ने एग्जाम दिया? Anybody who has appeared? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And Priyanshu and Harsimrat, have you appeared in the examination? Yes, sir. No, sir. कल? Phone? नहीं. Sorry. So आपने दिया एग्जाम? आपने नहीं दिया ना? दिया? You have? नहीं. Right. So ultimately, what do you find? Examination दिया, talking about mathematics. Yes. What do you find? Mathematics level है. क्या नाम क्या होता है आपने? वंशप्री है ना? वंश का कहना है कि मैथमेटिक्स जो आप वो it's very hard, right? How many of you agree with it? Just सुनो, पहली बात है एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें ना हम थोड़े से क्लियर करते जाएंगे.
we need to set the basic standards of the class, right? We have to set the tone at what level the class is going to operate, right? And you guys, I mean, कुछ और बच्चे भी अभी join करेंगे in 1 or 2 days, ठीक है? तो ultimately we need to have a clear thought process, right? फौज में जो अफसर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें ना एक कॉमन चीज होती है. अगर आपके नोन में नियर डेयर में कहीं ऑफिसर्स हैं, you will see कि they are very particular about things, right? They know what is right and what is wrong. हो सकता है कि जो वो सही कह रहे हैं वो हमें गलत लगे, but they are clear कि what they feel is right is right. ठीक है? आपके घर में कोई फौज में है ना, राइट? जस्ट पार्डन मी, बट एक नॉर्मल सी बात होती है, जो सिविलियन होते हैं ना, ठीक है, वो जब उनसे कभी कन्फ्रंटेशन होती है तो दे से कि दे कॉल इट कि यार क्या करें, फौजी दिमाग है, फौज की तरह सोचते हैं ना. फौजी दिमाग मतलब फौज की तरह सोचते हैं, राइट? फौज की तरह सोचने का मतलब पता है क्या है? दे हैव अटमोस्ट क्लैरिटी, दे डोंट लिव इन द कंफ्यूजन. सिविल में क्या होता है, हमें कहते हैं कि मैं 10 मिनट में आता हूं. 10 मिनट का मतलब 10 मिनट का मतलब पता ही नहीं है, आधा घंटा, 1 आवर की बात कर रहे हैं हम, 2 आवर्स की बात कर रहे हैं, वी नेवर नो, राइट? सिविल में बात करते हैं कि हाँ यार बोल दिया था, हो गया काम वो, ठीक है, बट पता नहीं वो काम हुआ नहीं, वी डोंट नो, राइट? बट इन फौज में क्या, फौज में जब फौजी ने कह दिया कि दैट जॉब इज डन, इट मींस दैट इज डन, राइट? उसने कहा कि आई विल बी बैक इन 4 मिनट्स, मतलब इन 4 मिनट ही विल बी हियर, राइट? जब डिफेंस के ऑफिसर समटाइम वी इनवाइट देम टू फॉर द डिनर के लिए, उनको बोला कि हम जैसे आपको बोला था ना कि डिनर पार्टी के लिए जाना है, बर्थडे पार्टी के लिए जाना है, कहीं जाना है, व्हेन वी इनवाइट वी टेल देम कि यार 8 o'clock आपने पहुंच जाना है ना, राइट? बट एट व्हाट टाइम डू वी रीच? 9, 8:30, 9 बजे केक कट चुके होते हैं बहुत जगह पर, है ना, राइट? खा भी चुके हो तो कई लोग केक मिलता ही नहीं, कई बार ऐसा होता है, राइट? बट when we are dealing with the defense officer, right? If we give them time, right? You mean 7:30 सर आ जाना, 7:30 हम सोचते हैं कि 7:30 बोलेंगे, 8:30 तक आएंगे, है ना, राइट? सिविल में ऐसे ना, डिफेंस में क्या है, टॉप 7:30 they will ring your bell, that they will be there. That's the difference. We need to adopt that. ठीक है? And when you go for this ND written examination, when we go for the your SSB interview, they're looking forward to these very qualities कि आपके अंदर वो चीजें हैं कि नहीं है, right? You have clear thought process or not, right? Sometimes हम कंफ्यूज में होते हैं कि हम बोले ना बोले, पता नहीं सामने वाला क्या सोचता है. यार सामने वाले ने सोचना है, वो उसका काम है, उसको सोचने दो, अपनी सोच को तो क्लियर करो, राइट? समझ गए बात, राइट? जब हम ट्रैवल करते हैं इंडिकेटर देते हैं, लेफ्ट साइड जाना हो तो लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट साइड राइट. व्हाई वी गिव दैट इंडिकेटर? जो इंडिकेटर पहले दे देता है ना, राइट, ही गेट्स राइट. ठीक है कि मैंने इंडिकेटर दे दिया तो मेरा राइट बन गया कि मैंने पहले इंडिकेट किया कि आई एम गोइंग देयर, राइट? So that is the clarity that as a defense officer you guys need to create in your mindset, right? कि जब आपको क्लियर है कि this has to be there, right? आपको कोई डाउट है तो मतलब clear that doubt, right? माइंड में रखना कि मैं पूछूं ना पूछूं, क्या होगा कैसे, कुछ nothing will happen. उल्टा क्या होगा, you are going to help out others जो डरे हुए हैं कि हम पूछें सर से कि ना पूछें, right? Why you are here? Why you guys are here? क्यों हैं? बताओ मुझे, क्यों आए हैं बताओ मुझे? Why you guys are here? Right? Because you feel that there is something, certain things that you lack in. Probably maths may weak, probably English may weak, or probably communication may weak. So there are certain limitation on our part, right? That's why you guys are sitting over here, right? So we need to set the standard, right? We need to set the tone clear कि हमें उन चीजों के ऊपर work करना, right? If you find any difficulty, you find any doubts, right? Come out, right? Straight way, right? Stand up and sir, please, can you repeat it for me or not? Yes. ठीक है, सो क्लास का स्टैंडर्ड, क्लास का लेवल, राइट? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम, योर कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट कि यार इस बैच में से कितने बच्चे निकलेंगे, उस बैच में से कितने बच्चे निकलेंगे, थर्ड बैच में से कितने बच्चे निकलेंगे, राइट? विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो आई डोंट वांट कि यार इस बैच से बात करें तो अल्टीमेटली कई बैचेस होते हैं, हमें क्लियर होता है कि इस बैच में से इतने बच्चे निकलने वाले हैं, इस बैच में से इतने निकलने वाले, राइट? सो वी नीड टू सेट अप आवर ओन स्टैंडर्ड. हमें अपनी क्लैरिटी बिल्डअप करनी कि यार मुझे निकलना है, मुझे निकलने के लिए क्या करना है, ठीक है? एज ए टीचर हमारा गोल क्या है? एज ए टीचर हमारा गोल क्या है कि आप सब लोग निकल जाएं, बट ऐसा होगा नहीं, राइट? डिफरेंस कहां पर आएगा? हम पढ़ाएंगे वही, इसी क्लास में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं किसी को बुला के इसको बुला लिया, तू आज बाहर आ जा, ये घाट रोड से इसके वहां पर मैं क्रिकेट खेलने जाता था बहुत ज्यादा, तो मैं इसको लेके जाऊं कि ठीक है यार चल तू मेरे साथ में चल और तुझे वाला इससे पढ़ा देता हूं, है ना? ऐसा नहीं होगा, समझ बात है ना? तो मतलब whatever will be will help, that will be done within this classroom.
राइट जब बच्चे जो सिलेक्ट होके गए जब वापस आते हैं दे रिकॉल देयर चेयर्स कि आई यूज्ड टू सिट ऑन दिस चेयर, ठीक है, और इस चेयर पे बैठ के जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है, ठीक है, राइट। तो अल्टीमेटली दीज आर द थिंग्स, दीज आर द एरिया जहां पर हमें वर्क करना है, राइट। अपना माइंड क्लियर होगा, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर होगी, ठीक है, सामने वाले चाहे वो टीचर है चाहे वो क्लासमेट्स हैं, दे शुड नो यू आर डिफरेंट, राइट, यू हैव टू बी डिफरेंट, ठीक है। घर में घर से जब निकले तो पड़ोसी को पता एनडी की तैयारी करने के लिए निकले, पता है नहीं पता, बताया जानबूझ के नहीं बताया कि मतलब कैसे होता है, बताओ, जानबूझ के डेलिबरेटली नहीं बताया है ना, राइट। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बताते नहीं है, बताते क्यों नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें लगता है पता नहीं होगा तो पड़ोसी जीने नहीं देगा, ऐसा होगा ना, ऐसा होता है, राइट। क्यों प्रियांशु ऐसा होगा, घर में पता, आस पड़ोस में सब दोस्तों को पता है कि तुम एनडी की तैयारी करने लगे हो, प्रियांशु कैन यू आर यू हियरिंग मी, लिसनिंग टू मी? Yes, sir. बता दिया सब, मतलब आस पड़ोस गांव में जहां पर भी हो वहां बता दिया सबको कि मैं एनडी की तैयारी करने लगा प्रियांशु? सर फ्रेंड्स को पता, बाकी ज्यादा नहीं बताया। ज्यादा नहीं पता है ना। अच्छा पता लगा कि पूरे गांव को पता चल जाए कि प्रियांशु अफसर बनने वाला है 6 महीने में, क्या होगा? पता नहीं सर। मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, लोग पूछने लगे कि कब जा रहा है, यस सर। राइट। सो अल्टीमेटली हमें डर है हमारे अंदर, जो अब हमने क्या करा है, हमने रखा कि यार नहीं होगा तो चुपचाप से आगे एडमिशन ले लेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो इस डर से अपने आप को बाहर निकालो। वी आर अल्टीमेटली क्या है आपको बता दूं, देखो द 5 लाख कैंडिडेट्स, 5 लाख बच्चे हैं जो एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। आउट ऑफ देम 8,000 कैंडिडेट्स दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 8,000 आउट ऑफ 5 लाख, 3 जीरो चलेगी, कितना चला, कितना बचा, 8 आउट ऑफ 500, तो 1 आउट ऑफ 60, अप्रोक्सीमेटली 60 बच्चे बैठेंगे, राइट, पेपर में, उसमें से कितने बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे, दैट इज 1, राइट। तो फर्स्ट गोल इज दिस, मतलब 60 में से फर्स्ट रैंक लेना, राइट, पॉसिबल है, ठीक है। एफर्ट करना पड़ेगा ना, एफर्ट क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा डिफरेंट होगी, बाकी 59 है इनसे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। हम सोचे कि हमारी लाइफ वैसी चलती रही जैसे उनकी चल रही है और साथ साथ में ये भी हो जाए, तो नहीं होगा, राइट। इफ यू वांट टू बी डिफरेंट यू हैव टू ब्रिंग चेंज इन अवर लाइफ, राइट, वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन अवर रूटीन, डेली रूटीन, राइट। जो हम हमारा डेली रूटीन रहता है, जो हमारी एक्टिविटीज है, जो हमारे एक्शंस हैं, दे डिमांड सम चेंज इफ यू वांट टू बी डिफरेंट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, राइट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सेट अवर गोल्स, राइट, कि मुझे करना क्या है, और ये 4 मंथ्स है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 4 मंथ आर लेफ्ट, राइट, विल फ्री यू ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर को हम आपको आजाद कर देंगे कि ठीक है जाओ जो करना कर दो, ठीक है, राइट। हमसे जो हो पड़ता था हमने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। सो अल्टीमेटली वी हैव एग्जैक्टली 4 मंथ्स टू गो, राइट। सो फिर 4 मंथ्स को हमें प्लान आउट करना, हमने करना क्या है, ठीक है, राइट। इट्स नॉट समथिंग दैट केक वॉक नहीं होने वाला, रिटन एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी केक वॉक, राइट, दैट पॉइंट इज, आई थिंक दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। Secondly, ठीक है, along with this, you guys all have your you all are talented ones, right? You all have individual strengths, right? So we need to keep working on those strengths. कोई अब बॉक्सिंग में अच्छा हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, या साथ साथ में जैसे somebody was studying that debates, ठीक है, स्पीच, इस तरह के कंपटीशन में या यूथ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट किया, तो we will also keep on working on such events. हम ऐसे events conduct करते रहेंगे यहाँ पर कैंपस में, बहुत commonly हम करते हैं। You guys also need to come and participate into those events. So events में participate करना, you learn a lot. वो एक additional effort है that is going to help you when you sit off for the SSB interview. ठीक है, right? बस written examination is not difficult. अगर आपको ट्रस्ट है ना, आप यहाँ तक आए हो, you believe कि हम किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कर देंगे हम, सिंपल सी बात। अगर ऐसा होता नहीं कि आपको डाउट होता, ठीक है, कि जब घर वालों ने आपसे बात करी, पूछा होगा कि बेटा करें तैयारी की, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देन यू मस्ट हैव शोन कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ, यू मस्ट हैव शोन दैट कॉन्फिडेंस, राइट। सो अगर कॉन्फिडेंस थे, अगर वो है, तो ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज एफर्ट, ठीक है, ट्रस्ट है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एफर्ट, राइट, एंड एफर्ट एंड ट्रस्ट बोथ आर कंबाइंड टुगेदर, दैट दे विल गिव यू द रिजल्ट, फाइन।
ठीक है। बीच में नेगेटिव्स आते हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिव होंगी हमारे सराउंडिंग में, आसपास में चलती रहेंगी, ठीक है राइट, बट उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है राइट। नेगेटिव्स में क्या होता है, कभी कोई चैप्टर होगा, वो चैप्टर जो है वो आपसे सपोज करो कि नहीं समझ में आया, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी 12th की जो चैप्टर्स हैं हो सकता है उसमें से 12 चैप्टर, 12 में से 8 चैप्टर वो बहुत अच्छे से आते हैं, 4 चैप्टर अच्छे से नहीं आते। मैंने देखा स्टूडेंट्स है दे स्ट्रगल इन जो कैलकुलस वाला पोर्शन है, स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन, उसमें स्ट्रगल करते हैं, ठीक है राइट। हो सकता है रिलेशन एंड फंक्शन वाला है वो समझ में नहीं आता कई बच्चों को कि सर हो क्या रहा है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा कैसे हो रहा है, कौन सा रिलेशन बन जा रहा है, कौन सा फंक्शन बन जा रहा है, ठीक है राइट। तो देयर थिंग्स जो कि थोड़ी सी ट्रिकी हैं, वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड, उसको इन डेप्थ में समझ के फिर हमें आगे बढ़ना है, राइट। सो वो सारी चीजें हो जाएंगी, बट हो सकता है किसी चीज के लिए हमें कम एफर्ट से काम करें, किसी में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़े, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू ट्रस्ट योरसेल्फ, आपको अपने पर फेथ है, डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट, ठीक है। बट एफर्ट करना पड़ेगा, आप ही नहीं है, हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हजारों बच्चे पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं कि हमें 2023 का सितंबर का एग्जामिनेशन हमें क्रैक करना है, राइट। देयर पीपल हु आर फोकस्ड, राइट, हु नो कि हमें ये करना ही करना है, सो हमें थोड़ा सा उनसे एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, राइट। चैलेंजेस क्या आते हैं, तो किसी दिन जब आप सुबह उठोगे आपका मन नहीं होगा कि आज नहीं, आज है ना, ऐसा होगा कभी किसी दिन कि आज रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है जब आप फौज में जा रहे हैं, आज ऑपरेशन डिसाइडेड है कि आज जो है वो हमने यहाँ पर जाना है और वहां पर कोई टेररिस्ट है, हमें ऑपरेट करना, वहां पर उनको वी हैव टू शूट दोस टेररिस्ट, राइट। सो विल इट हैपन कि यार आज मन नहीं, कल चलते हैं, ऐसा हो सकता है नहीं ना, राइट। तो फौज ऐसी नहीं है, फौज में जो करना है वो करना है, राइट। देयर इज नो प्रोकास्टिनेशन, राइट, मतलब कोई पुट ऑफ नहीं करते, हमें जो करना है, जो डिसाइड हो गया वो करना ही करना है। एंड वंस यू डल दैट थॉट, वो जो थॉट प्रोसेस ऐसी सोच डल कर ली, उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजों, ठीक है राइट। लाइफ में से एक्सक्यूजेस को निकाल दो, दिस नो एक्सक्यूज, राइट, दिस ओनली वे दैट हाउ यू कैन अकम्प्लिश दोस थिंग्स, राइट। बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत बारिश हो रही है, बट क्लास हो रही है, यहाँ पर आपको पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, वो ये नहीं सोचना कि आज हम नहीं पहुंच पाएंगे, ये सोचो कि हमने पहुंचना कैसे है, ठीक है। द टाइम यू फील कि यार आज कुछ चैलेंज है, बारिश हो रही है, मुश्किल हो जाएगा, बट पता है आज मुश्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको वर्कआउट करना है, ठीक है। बहुत क्लियर माइंडसेट है उसमें, ठीक है। अब देखो जो एनडीए का एग्जामिनेशन है, हम थोड़ा सा उसको स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है, क्लियर करना है, राइट। व्हाट्स द गोल। अच्छा यहाँ पर एक और बात कर रहा था, ये जो 8000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, इनमें से फर्दर क्या होगा, फर्दर क्या होने वाला है, एसएसबी होगा। एसएसबी में क्या होगा, आउट ऑफ दीज 8000 हाउ मेनी विल क्लियर द एसएसबी, डाउन 600, 800 लगा लो, 800 अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो 1 आउट ऑफ 10, वैसे 1 आउट ऑफ 12 एवरेज जो है दैट इज 1 आउट ऑफ 12, राइट। तो 1/60 पहले हो गए और फिर उसमें से 1/12, 1 आउट ऑफ 720 बच्चों में से कितने बच्चे जाएंगे। अब आपको ऐसा नहीं लगता गलत कर लिया कुछ, लग रहा है मुझे पता था पहले कि ऐसा होता है, हाँ किसी को अभी अभी पता लगा हो जस्ट नाउ, हरसिमरत एंड प्रियांशु, हाँ जी, पॉइंट इज क्लियर। हम क्या करने वाले हैं वो चीज, मतलब मैं कहने हमें हम एफर्ट उस हिसाब से करें जो पता हो कि क्या करना है हमें। यस Yes, sir. Yes, हाँ। sir. मैं सोचा कि आपने सुनना ही बंद कर दिया, No, sir. ठीक है, क्लियर है ना, राइट। सो मीन टू से द लेवल ऑफ कंपटीशन हैज टू बी क्लियर। अच्छा अब करना क्या है, स्ट्रेटेजिकली प्लान आउट करना है हमने थोड़ा सा, ठीक है। सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट क्या लगता है आपको, ये बताओ। अच्छा, ये क्या लगता है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको मतलब एनडीए एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा, सबसे ज्यादा हेल्प कौन सब्जेक्ट करेगा। मैथ्स, मैथ्स वेटेज को देख के कह रहे कि मैथ्स की वेटेज जो है वो दैट इज 300 मार्क्स। इंग्लिश का वेटेज कितना है,
200। जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज में हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, थोड़ा सा करंट अफेयर आता है, थोड़ा सा पॉलिटी का कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राइट। देन देयर इज जनरल साइंस, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायो आएगी, राइट। दिस इज ऑफ 200 मार्क्स, दिस इज ऑफ 200 मार्क्स, 200 200 200 एंड 300। ठीक है, दैट इज 900 मार्क्स। दिस इज एग्जामिनेशन, सिंपल है ना, राइट। एग्जाम दिया आप लोगों ने? हाँ जी। क्या परेशान किसने किया था? जीएस वाला पोर्शन, दिस वन, ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो आप? ठीक है, चलो। और कैलकुलस वाला पार्ट, ओके। तो ये तंग करता है और ये सिट डाउन, बैठो बैठो, ये तंग करता है। आपने दिया था एग्जाम मैथ्स एंड फिजिक्स। इस एग्जाम में फिजिक्स वाज अ बिट ट्रिकी वन, बट अदरवाइज मैथ्स ने परेशान किया था, है ना। मैथ्स 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 एंड केमिस्ट्री आपने दिया है, ठीक है। नहीं, देखो, जो मैथ्स का सब्जेक्ट है 300 मार्क्स का, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज अ डिसेंट वन। बहुत आसान भी नहीं होता, ठीक है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। हमें थोड़ा सा अच्छे से प्लान आउट करेंगे। इट्स वेरी इजी टू स्कोर अराउंड 125 मार्क्स, ठीक है, इजी टू स्कोर। बट इसके लिए हमें प्लान आउट करना पड़ेगा कि विच आर द एरियाज वी आर गोइंग टू टारगेट, किन एरियाज में से हम जो है वो क्वेश्चन को टारगेट करना है, ठीक है। एंड देन इट इज डिफिकल्ट टू गो 150 प्लस। अब 150 प्लस के लिए आपका मैथ, बेसिक मैथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, देन यू कैन गो फॉर 150 प्लस स्कोर, ठीक है, राइट। इंग्लिश इज वन एरिया जहां पर हमारे स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली 180%। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, यू हैव अ ह्यूज एडवांटेज। 350 कट ऑफ जाती है, 50% स्कोर यू कैन गेट फ्रॉम इंग्लिश। समझ गए बात? सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प कर सकता है दैट इज द सब्जेक्ट इज ऑफ इंग्लिश। देखो, कट ऑफ को, मार्क को मतलब अचीव करना है, कट मार्क्स को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा कौन हेल्प करेगा? इंग्लिश, राइट। जो मैथ है, मैथ आपको बेसिक, मतलब अगर आप मैथ्स में वीक हो, टारगेट हैज टू बी 100 to 125। मैथ्स में एवरेज हो 125 to 150। मैथ्स में बहुत अच्छे हो तो 150 प्लस 175 200 कुछ भी टारगेट किया जा सकता है, ठीक है, दैट विल बी दिया, ठीक है, राइट। बट अदरवाइज इसमें वेरिएशन बहुत है कि अगर आप मैथ्स आपका मतलब एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो 100 इज द आइडियल टारगेट फॉर दैट। आई वोंट से कि मोर देन दैट। 100 लाने के लिए हमें कुछ चैप्टर्स टारगेट करने पड़ेंगे, उनके ऊपर कमांड बिल्ड करनी है, फालतू हमने काम नहीं करना है, ठीक है, राइट। देन इंग्लिश, इंग्लिश में वेरिएशन बहुत आता है। कुछ बच्चे 80 स्कोर करना भी चैलेंज हो जाता है और कुछ बच्चे आराम से 180 स्कोर कर जाते हैं, इतना ज्यादा वेरिएशन, ठीक है, राइट। सो इंग्लिश को हम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो हम वर्क करेंगे, इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है, ठीक है। इसमें रियली एडिंग अप योर वोकैबुलरी। हमें जो है क्या करना है, जब हम लड़ाई में जा रहे हैं तो उसके लिए क्या हो चाहिए, हमें जब प्रिपरेशन करते हैं वॉर के लिए तो क्या करते हैं, वी हैव टू शार्पन आवर आर्म्स, ठीक है। हमें नए नए जो आर्म्स हैं वो अपने इक्विप, उनके साथ इक्विप करना पड़ेगा अपने आप को। सो जब इंग्लिश के सेक्शन को टारगेट करना है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इज दैट इज वोकैबुलरी, राइट। डायरेक्टली आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, समवेयर अराउंड 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चन 140 मार्क्स जो है वो इसमें से आने हैं, ठीक है। देयर विल सर्टेन क्वेश्चंस जो पैराजंबल्स के आ जाते हैं, वी डोंट नीड डीप ग्रामर फॉर दैट। जो एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए प्रॉपर ग्रामर चाहिए। अदरवाइज मोस्टली इट इज अ टेस्ट ऑफ योर वोकैबुलरी एंड यूजेस ऑफ द वर्ड्स, कैसे आप यूज करते हैं, ठीक है, राइट। सो दिस इज वन एरिया जहां पर वोकैब के ऊपर हमने कंटिन्यूअसली वर्क करना थ्रू आउट, ठीक है, राइट। तो उसका जो है वो आपका एक स्ट्रक्चर बना देंगे, उस स्ट्रक्चर के साथ में डेली आपको जो वोकैब के वर्ड्स देते रहेंगे, आपने जो है वो उनको डेली लर्न करना है। आपके ग्रुप्स में शेयर कर देंगे, यू गो थ्रू दोस वर्ड्स। 10 वर्ड्स का मतलब है साथ में 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑलमोस्ट 5 and to 10 अराउंड 50 वर्ड्स अ डे हम वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है, राइट।
धीरे धीरे करते रहेंगे। वर्स्ट केस क्या होगा, 50 में से हो सकता है 10-15 जॉब हमें याद ना रहे, बट एफर्ट तो कर रहे हैं हम, ठीक है, राइट। सो इंग्लिश हैज टू बी माय स्ट्रेंथ, क्लियर है, ठीक है। देन इफ यू आर नॉन मेडिकल स्टूडेंट, देन दिस इज नॉट गोइंग टू बी चैलेंज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स के इस बार का जो एग्जामिनेशन था वो थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, बेसिकली न्यूमेरिकल्स इतने नहीं पूछे जाते जितने कि इस एग्जाम में इस बार पूछे गए थे। सो दैट इज द ओनली चैलेंज दैट हैज हैपेंड, राइट। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, और हमें फोकस करने की जो फिजिक्स है उसको भी अच्छे से करना हमने, राइट। थोड़ा सा और डीप हम करेंगे इस बार, ठीक है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम अच्छे से कवर अप करेंगे। बट ऐसे होता है कि जैसे लास्ट ईयर पॉलिटी क्वेश्चन बहुत आए थे, ठीक है, पर पॉलिटी जो है वो इस बार की एग्जामिनेशन पॉलिटी का 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, तो ज्यादा नहीं, तो वो थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, बट हमें तो प्रिपेयर रहना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राइट। This area GS, that I assure you that you all will be scoring 100+ marks, even if you don't know anything right now, कुछ भी नहीं जानते, but you all will be scoring 100+ marks, that I assure you। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम जो पढ़ाएंगे, जो रिवीजन कराएंगे, that is more than sufficient, right? ठीक है। और ये जो है, जो जनरल साइंस वाला है, ये 120 तक आपको टारगेट करना चाहिए, इसमें इंडिविजुअल थोड़ा सा एफर्ट रहता है। इस चीज के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और पॉलिटी और बाकी जो है बेसिक नॉलेज जो रहता है, राइट, इसमें आराम से आप 100+ जाएंगे, एवरीबडी विल गो इनटू इट, ठीक है, राइट। सो दिस विल सम अप योर स्कोर। इंग्लिश में 120+ टारगेट आइडियल होना चाहिए हर किसी का, किसी का 150। आज भी टेस्ट लूंगा तो सम ऑफ यू विल बी स्कोरिंग 150+ आज की डेट में भी इंग्लिश में हो सकता है, ठीक है, राइट। सो अगर ऐसा है तो दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज फॉर यू, राइट। बाकी चीजों को मैं बेसिक्स वर्क करने एंड विल से, ठीक है। सो दिस विल एड अप, कितना स्कोर बन जाएगा अगर आप इसमें 125 भी लेके चलते हो, तो यू विल बी लैंडिंग अप विद अ स्कोर ऑफ ऑलमोस्ट, कितना हो जाएगा, 100, 120, 240, 340 एंड अराउंड 425 to 450 की रेंज में आपका स्कोर बन जाएगा। दिस हैज टू बी अ गोल, ठीक है। मेरा गोल क्या है, 400, 425, 400 to 450, ठीक है। वेरिएशन इंडिविजुअल हो सकती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना तो कर सकते हैं, ठीक है, बट रिटर्न का स्कोर अगर आप 400+ है, यू आर इन सेफर जोन, राइट। अभी भी क्या अराउंड 538 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है, उसमें से 400 ज्वाइन करेंगे, तो समवेयर अराउंड 138 कैंडिडेट विल बी आउट। उन्होंने सब कुछ कर लिया, रिटर्न क्लियर किया, मेडिकली दे आर फिट, बट दे विल बी मेरिट आउट। क्लियर है बात, ठीक है। सो एवरी स्टेज इज इंपॉर्टेंट, ओके, राइट। एफर्ट करना पड़ेगा, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना, पढ़ना पड़ेगा। होता है कि समटाइम हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो शायद स्टडीज के लिए, एकेडमिक्स के लिए इतना कंडीशन नहीं होता। शायद कई बार क्या होता है कि हम तो पढ़ना चाहते हैं, साथ वाला कोई और है जो हमारा फ्रेंड है, बट शायद वो नहीं पढ़ना चाहता, उसकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। वो होता है मैं आए हैं बस 2-4 महीने हम टाइम पास करेंगे, वापस चले जाएंगे, घूमने फिरना है बस उन्हें, ठीक है। सो दैट कैन हैपन, बट अगर आपको कुछ करना है तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद रिगार्ड टू योर एम, क्या आपका एम क्या, आपका गोल क्या है, करना क्या है, एफर्ट क्या लगेगा उसके लिए, क्लियर है, ठीक है। मैं आपसे एक छोटी सी मतलब एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, राइट। देखो क्या होता है कि इसके लिए करना क्या है, बेसिक सी चीज बताता हूँ, करना क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैब की हमने एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, 10 वर्ड्स हैं, साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे, ठीक है, उनके 4-4 ऑप्शंस होंगे, तो समवेयर अराउंड 40 to 50 वर्ड्स जो है विल गो थ्रू ऑन द डेली बेसिस। डेली हम 40 से 50 वर्ड्स को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट, पॉइंट ये है कि हम तो आपके साथ शेयर कर, बिकॉज वो क्लास में नहीं कर पाएंगे, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, बट विल यू बी एबल टू गो थ्रू दोस वर्ड्स, क्या आप उन वर्ड्स के ऊपर टाइम स्पेंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट इज, ठीक है। एसएसबी के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट। मैं सबको कहता हूँ डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, एवरीबॉडी शुड गो एंड रीड न्यूज़पेपर, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल काम है, बोलो। मैं को न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, आपका मतलब दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग योर एसएसबी इंटरव्यू विल बी ऑलमोस्ट 50% मोर देन विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम क्लियर करने की, ठीक है। किया जा सकता है, राइट। चैलेंज पता क्या होता है, करना आसान है और नहीं करना उससे आसान हो जाता है, समझ की बात, राइट। कोई काम है वो करना इजी है, बट नहीं करना उससे भी इजी है ना। न्यूज़पेपर उठाना है, पढ़ना है, न्यूज़ पढ़नी है, उसमें बाय डिफॉल्ट आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ रही है, आपका
जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, आपका वोकेबलरी बढ़ रही है, आपको पता ही नहीं है। आप डोंट डू दिस थिंग कि न्यूज़पेपर पकड़ाओ साथ में जो वो वर्ड्स को अंडरलाइन किया, फिर डिक्शनरी में देखो, वो सब करने की जरूरत है, सिंपल पढ़ते जाओ बस, ठीक है। यू विल कम टू नो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, राइट। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। जब एग्जाम में आएगा तो आप वर्ड सामने आएगा तो यू विल हैव एन आइडिया कि इस वर्ड का मीनिंग पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, एंगर होता है, लव होता है, हेट होता है, कुछ भी होता है। यू कैन गेट टू नो द फीलिंग बिहाइंड दैट वर्ड, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। बट काम क्या है? पढ़ना, रीडिंग, ठीक है। जितना एग्रेसिवली आप पढ़ोगे उतना स्ट्रेंथ अब आप स्ट्रांग होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? यस, ठीक है। मैं आपको वैसे बोलूं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे, मोटिवेशन नहीं होती किसी चीज को करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार को तोड़ना है, तोड़ दोगे? बोलो। कंक्रीट की दीवार है, इतनी मोटी दीवार है, तोड़ोगे? तोड़ सकते हैं, बट क्यों तोड़ेंगे, है ना। आसान काम है वैसे तोड़ना, इतनी मोटी दीवार है कंक्रीट की, आसान काम, मुश्किल काम है ना। अब हमें मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें पर्पस नहीं होगी इसको तोड़ने के पीछे, है ना। मैं आपको बोलूं, ये 5 नहीं, ये 10 फुट की दीवार है, 10 इंच की दीवार है, इतनी बड़ी दीवार है, इतनी मोटी दीवार है, ठीक है। और इस दीवार के पीछे 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। दीवार तोड़ना मुश्किल काम है? बोलो। आसान है? ये 10 करोड़ के लिए क्या है यार दीवार, मतलब है ना, 10 इंच की जो 10 फुट की होती है वो भी तोड़ देते हम, है ना। इट्स जस्ट अबाउट थॉट प्रोसेस कि हमें मिलने क्या वाला है, ठीक है, राइट। अपना एम क्लियर करो कि मुझे एनडीए में जाना है, ठीक है। एनडीए ऑफिसर होता कौन है पता आपको? क्या होता है, क्या उसके अंदर क्या, वो हाउ एक ऑफिसर इन डिफेंस फोर्सेस डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? आईएएस ऑफिसर सुना है? अच्छी पोस्ट होती है। आपको ऑप्शन दूं कि आप आईएएस ऑफिसर बना देता हूं मैं आपको, बनना चाहोगे? बनना चाहोगे? नहीं, फौज में जाना है? चल, जो आईएएस ऑफिसर होता है दैट इज क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स। क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स, जो स्कूल में हेडमास्टर होता है वो गजेटेड ऑफिसर होता है, वो क्लास 1 नहीं, क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है। और कब बनता है, कब बनता है? वो टीचर पूरी उम्र टीचर रहता है, रिटायरमेंट से थोड़ा सा पहले वो क्या बनता है, हेडमास्टर बन जाता है। तो क्या बनता है वो? क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। जो कॉलेज का प्रिंसिपल, वो भी रिटायरमेंट के टाइम पे बनता है। जब कॉलेज का कोई प्रिंसिपल होता है तो ही इज कॉल्ड क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। और कब बनता है? 60 साल की एज में रिटायरमेंट होती है तो उससे 3, 4, 5 साल पहले, 55, 56 साल पूरा इतना स्टडी करते हैं, पहले मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, फिर कॉलेज के एग्जाम क्लियर करेंगे, फिर कॉलेज में वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाएंगे 20, 25, 30 साल के लिए। उसके बाद इतना एफर्ट करने के बाद दे गेट टू दिस पोस्ट, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, राइट। जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रेजुएशन के बाद बच्चे एफर्ट करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं। 27 नॉर्मल एज जो है 27-28 साल की एज में जाके जो है बच्चे कुछ एग्जाम क्लियर कर पाते हैं एंड दे बिकम क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, राइट। एनडीए के थ्रू एट द एज ऑफ नॉर्मली 18 साढ़े 18 साल की एज में आपकी इनटेक होती है, राइट, या 19 साल की एज में भी आप जाते हो, राइट। 22 to 23 years of age you become class 1 officers, ठीक है। You become class 1 officer. Youngest class 1 officers are NDA cadets, right? And from where you study, we talk about IITs सुना आपने? कितने आए? How many IITs आते हैं? कितने? हमें पता ही नहीं कितने, समझ रहे बात? मुझे भी नहीं पता, सच में बताऊं तो, ठीक है, राइट। बट कितने ही हैं,
20-25-30 IITs हैं 30 के आसपास IITs हैं, है ना। आईएम्स का नाम सुना है आपने, बहुत सारे आईएम्स हैं, राइट। एम्स भी बहुत सारे हैं, MBBS कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू गो फॉर IITs। IIMs होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारे हैं वो, एम्स बहुत सारे हैं, राइट। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस, राइट, बट देयर इज ओनली वन NDA, राइट, इट्स डिफरेंट। NDA एक ही है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वही हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है यार चल एक और NDA खोल लो, एक हिमाचल में खोल, हिमाचल से बहुत सारे लड़के इतनी दूर आए हैं तो एक और NDA हिमाचल में खोल दो, है ना, राइट, घाटजोट में खोल दो वहां पर, है ना, राइट। सो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, इट्स वन एलीट, राइट। जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू, राइट। वी हैव डिफरेंट फीलिंग फॉर दोज NDA कैडेट्स। ऑफिसर भी बहुत सारे बनते हैं, FCAT ग्रेजुएशन के बाद FCAT के थ्रू भी जाते हैं कैडेट्स, राइट, वो भी ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। आपका CDS का एग्जामिनेशन, वो भी ऑफिसर बनते हैं, राइट। बट जब हम रैंक स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट एंड गो टू द टॉप ऑफ, जो टॉप के रैंक्स होते हैं ब्रिगेडियर, ठीक है। देन यू हैव मेजर जनरल, राइट, एंड देन वी हैव लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन वी हैव जनरल। जो ग्रेजुएशन के बाद जो जाते हैं वो कर्नल तक स्टॉप। मैक्सिमम बहुत रेयर है कि वो ग्रेजुएशन से जाएगा और वो आगे की एंट्री में जाएगा। मैक्सिमम कहां पर रुक जाते हैं, याद क्यों, क्योंकि वो जाते हैं 23, 24, 25 साल की एज में, वो लेट होते हैं, उसके बाद वो ट्रेनिंग करते हैं, तो उनकी कमीशनिंग जो है वो समरण 24, 25, 26 साल की एज, 27 साल तक जो कमीशन होते हैं। बट NDA के ऑफिसर्स they get commissioned at the age of 22, 22 साल की एज में you are commissioned, you pass out, you take charge, you take command, right। तो ऑटोमेटिकली जो ग्रेजुएशन के बाद आने वाले हैं उनसे आप तो आप सीनियर हो जाते हो, आपकी एज के हैं बट यू विल बी सीनियर टू देम, राइट। सो जितने भी टॉप पोस्ट हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये सारी की सारी पोस्ट कहां से आती हैं, राइट। ऑप्शन तो होता है कि हमारा NDA नहीं हुआ तो हम उससे कर लेंगे, ग्रेजुएशन के बाद FCAT में चले जाएंगे या CDS में चले जाएंगे, OTA में चले जाएंगे, ऑप्शंस आर देयर, राइट। बट जो NDA देगा वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर वहां पर पहुंचना है, NDA में जाना चाहते हैं, तो हमें अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, है ना। हम सोचें कि मतलब ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे ही नहीं होता है ना। ऐसे नहीं चलते चलते ठोकर लगी, देखा नीचे पत्थर था, पत्थर उठाया, नीचे चिराग निकला, चिराग से जिन निकला, जिन ने बोला क्या मिलेगा, क्या चाहिए तुम्हें, है ना। ऐसा नहीं होने वाला है हमारे साथ, एटलीस्ट हमारी किस्मत ऐसी नहीं कि हमारे साथ ऐसा होने वाला, ये लेके चल, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें आगे निकलना पड़ेगा, देन क्लियर है, ठीक है। चलो सब्जेक्ट्स वाइज बात करें, दो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स को अप्रोच कैसे करना है। देखो, मैथमेटिक्स इज द मेजर हर्डल, मैथ्स इज द मेजर हर्डल, ठीक है। इन एवरी चैप्टर व्हाट विल स्टार्ट विद, विल स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट। हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। प्रॉब्ली आप लोगों ने पहले पढ़ रखे होंगे कंसेप्ट, राइट। थोड़ा सा हम साथ में उसमें शॉर्टकट्स भी डिस्कस करेंगे, राइट। बट अगेन जो इंडिया का मैथ्स है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसमें है। अगर आपका पहले मैथ्स वीक था तो उसको वहीं छोड़ के आओ कि ठीक है वीक था बट अब ठीक करना है, ठीक है। अब जीरो से पढ़ना शुरू कर दो, जहां डाउट होता है यू स्टैंड अप एंड आस्क द टीचर, डोंट लेट द थिंग्स मूव ऑन, ठीक है, राइट। एक और चीज, क्लास के अंदर ना अपना माइंड जो है वो पूरा, कई बार क्या होता है हम फिजिकली प्रेजेंट, तो दिमाग कहीं और घूम रहा है, ठीक है। फोकस, अटेंशन, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं, कुछ नहीं करते, फर्क कहां पर होगा, शायद उसका ध्यान कहीं पर हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, ठीक है, राइट। तो इट्स जस्ट अबाउट फोकस। और गेम कितने टाइम की है, जस्ट 4 months,
नेक्स्ट 4 months विल डिसाइड योर एंटायर लाइफ, और आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन की भी लाइफ वही ये 4 महीने डिसाइड करेंगे। ये सोच, जिंदगी में सबसे ज्यादा जो एफर्ट करने का टाइम वो कौन सा है? नेक्स्ट 4 months, अगले 4 महीने, है कि नहीं? मानते हो इस चीज को? वंस यू आर इन एनडीए, एक बार एनडीए में चले गए, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद तो बाकी जो कर रहे हैं वो करना हमने, ठीक है, राइट? अभी जो कैडेट्स जाते हैं, व्हाट हैपेंस, देखो आप प्रायोरिटीज क्या होती हैं। नहाने को कितना टाइम लगता है तुम्हें? ब्रेकफास्ट करना है, रेडी होना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ व्हाट हैपेंस। अब एक कैडेट से बात हो रही थी, मैं अभी बता रहा था, वो कहता है कि एट 6:40 दे गेट फ्री फ्रॉम फिजिकल। 6:40 पे वो फिजिकल, ग्राउंड में फिजिकल होता है, उससे वो फ्री होते हैं, ठीक है, राइट? और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जो उनका कैडेट्स हॉस्टल है जहां पर वो रहते हैं, ठीक है, राइट, दैट इज 1 किलोमीटर, ठीक है, राइट? यहां से मेस से अराउंड 200 मीटर, ये मेस है, राइट? 6:40 दे गेट फ्री। जब मेस में जाना है, ठीक है, मेस विल क्लोज एट 7:10, ठीक है। दे हैव टू रन फ्रॉम हियर टू द हॉस्टल, टेक ए बाथ, गेट रेडी फॉर द breakfast and reach there. If you reach after 7:10, you don't get breakfast, right? ठीक है? So but वो सबके साथ है ना, वो फील नहीं हुआ, वो सबके साथ है, सबके साथ ऐसे होना, right? So ultimately what they train to, right? They train you to set your time priorities, right? ऐसा नहीं कि आप फिजिकल करके आए, आप घर आके रूम में आएंगे, लेटेंगे, रिलैक्स करेंगे, no, you have to run, you have to move, right? And not everybody is running, हर कोई भाग रहा है, right? They train you for the best, they train you for the worst, हर चीज के लिए ट्रेन करते हैं, because being an officer, right? आपको तो ऑफिसर मेस में गए, कभी खाना खाया आपने? Anybody? Yes? कैसी होती है ऑफिसर मेस? लग्जरी। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारी एनिवर्सरी या कुछ स्पेशल डे होता है तो हम जाके 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, वन से नहीं है ना, राइट? और ऑफिसर्स मेस इज फॉर द ऑफिसर्स एंड यू गेट एनी सॉर्ट ऑफ, जो 5 स्टार होटल की लग्जरी है वो उनको डेली एक्सेसिबल होती है, ठीक है, राइट? वो डेली जो ऑफिसर्स हैं वहीं पर खाना खाते हैं, इट्स ऑलमोस्ट, मतलब जो 5 स्टार फैसिलिटी है वो विद इन योर कैंपस, दैट इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन डेली बेसिस। Whatever you want to have, जो कुछ आप खाना चाहते, जो कुछ आप सोच सकते हैं वो आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। नहीं है तो वो आप ऑर्डर कर दोगे, दे विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो दीज आर द सर्विसेज, दीज आर द फैसिलिटीज गिवन टू द ऑफिसर्स, राइट? बट along with this they are also prepared for the worst. ऐसा भी हो सकता है आपको खाना ना मिले, ऐसा भी हो सकता है आपको जंगल में चने खा के गुजारा करना पड़े, so you are prepared for the all scenarios, ठीक है, राइट? सो ऐसा नहीं है, मतलब एक कॉमन जो चीज होती है ऑफिसर्स के अंदर, दे डोंट कंप्लेन, ठीक है। हम ना कई बार कॉमन चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जो बच्चे यार यहां से पास आउट होकर निकल गए है ना, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, एसएसबी में जाते हैं, जो एसएसबी में जाके सेलेक्ट हो जाते हैं, जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, रिटन इज अ डिफरेंट गेम बट एसएसबी में सेलेक्ट होना इज अ डिफरेंट गेम, राइट? तो कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं, हम बैठते हैं, यार ये जो बैच था इसमें से ये बच्चे गए, ये हो गया और ये नहीं हुआ, राइट? बड़े कुछ कॉमन चीजें जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, कुछ कॉमन चीजें, ठीक है। वो चीजें आप भी अपने अंदर जो है वो डेवलप करना शुरू करो, ठीक है। देयर क्या रहते हैं, हम बस टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट हो गए, बट एनीवे वी विल कम बैक टू दैट। देखो सबसे पहले चीज क्या है कि सबमिशन, सबमिशन, सबमिशन समझते हो? दे सबमिट कंप्लीटली टू द टीचर्स, ठीक है, पूरी तरह से डिवोशन, मतलब कि सर ने बोल दिया यस तो मतलब यस, सर ने बोल दिया कि ये ऐसे करना है तो वैसे ही करना है, सर ने बोल दिया कि 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है, राइट? द कंप्लीट सबमिशन टू द टीचर्स, जो सीनियर है उसको कंप्लीट सबमिशन रहती है, मतलब हम
देख पाते हैं यार ये बच्चा जो है, बच्चे इंटेलिजेंट होना एक अलग अलग बात है, ठीक है राइट, बट आप ट्रस्ट कर रहे हो, टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, सबमिशन का मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट, और टीचर जो बोल रहा है उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं टीचर बोला चल ठीक है बोलते रहते क्या करेंगे, काम तो आपने करना है ना, राइट। सेकेंड थिंग, नो कंप्लेंट्स। मैं आपको बताता हूँ, आप घर में होते हो, घर में रहते हो, घर में क्या सारी चीजें परफेक्ट होती हैं, परफेक्ट होती हैं, घर में कई बार सब्जी ऐसी बनती है जो खाने का मन नहीं करता, होता है ऐसा, घर में कई बार कुछ और चीजें होती हैं, लाइट घर में भी चली जाती है ना, तब भी हम दिन निकालते हैं, राइट। वैसे हम यहाँ बैठे कभी लाइट भी चली जाएगी, ऐसा भी होगा, कभी टीचर को इमरजेंसी हो सकती है, टीचर शायद क्लास ना लगा पाए, है ना, राइट, बट अल्टीमेटली वी हैव टाइम, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम, दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट हैं जो निकलते हैं, दे डोंट हैव कंप्लेंट्स, हम अपने एंड के ऊपर वी ट्राई टू रन द थिंग्स एट अवर बेस्ट, जो हम बेस्ट कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल परफेक्ट नहीं हो सकती यार, हो सकता है 90% चीजें अच्छी हो, 10% में कहीं कमी है, बट whether what's your focus is on 90% or 10%, that's important, हो सकता है ना, राइट। आपको क्या हो, सपोज करो किसी दिन क्लास जो 10 मिनट लेट शुरू हुई, ठीक है राइट, जैसे आज क्लास आपकी 10 मिनट लेट शुरू हुई, ठीक है, अब ऑनलाइन वाले बच्चे थे, इनका हमें भी आइडिया नहीं थी कि ऑनलाइन भी है बच्चे, ठीक है राइट, सो अल्टीमेटली ऐसा कभी हुआ, राइट, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है यार कि क्लास लेट शुरू, अब हम उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जो एक्चुअल में चीज होनी है उस चीज को मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। थिंग्स विल नॉट हैपन दैट वे, बट कभी हो जाए तो मूव ऑन विद द थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज पेशेंस, स्लो, ठीक है राइट, बहुत फास्ट भागने से कुछ नहीं होगा, जो भी चीज है तसल्ली से आराम से करनी है, जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करो, ठीक है, डोंट रश आफ्टर द थिंग्स, कोई चीज है नहीं समझ में आ रही है, आराम से स्पेंड सम टाइम ऑन द थिंग, उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, ऑटोमेटिकली आपकी कमांड आपका कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है राइट। टीचर्स हैं, टीचर्स आर हियर फॉर टू हेल्प यू आउट, उसके ऊपर काम करना, क्लियर, यस, ठीक है, एंड कंसिस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। हम क्या कहते हैं, आज हम 15 घंटे पढ़ लिए, सपोज 15 घंटे पढ़ लिए, और कल हम थक गए, सिर दर्द हो रहा है, और कल हम पढ़े नहीं, तो एवरेज कितना हो गया, 7.5 घंटे, हो सकता है अगले दिन फिर से हम ना पढ़ पाए, कम पढ़ पाए, है ना, राइट। सो आई वोंट से कि स्टडी फॉर 15 आवर्स, आई वुड से इफ यू कैन स्टडी 6 hours consistently, that is enough. 6 hours मतलब 6 hours consistently रेगुलरली एफर्ट डालना है, ऐसा नहीं कि आज 6 हैं कल 10 हैं परसों 2 हैं फिर 4 है, आप हफ्ते बाद बोलो सर मैं टोटल जो 7 दिन थे 42 आवर्स पढ़ लिया, ठीक है, हफ्ते की एवरेज पूरी हुई, नो, राइट, कंसिस्टेंट 6 hours, क्लियर, सेट अप योर टाइम कि शाम को मैंने 4 घंटे लगाने हैं, सुबह मैंने 2 घंटे लगाने हैं, आफ्टरनून में 1 hour निकालना है, कैसे करते हो, दैट इज योर ऑन प्लानिंग, वो आपको खुद से करना है, ठीक है ये बात, ठीक है भाई। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो बेसिक चीजें जो हमने ऑब्जर्व करी हैं, एंड दीज आर द थिंग्स इफ यू कैरी इनटू एसएसबी, आपको रिटर्न में भी हेल्प करेंगी और एसएसबी में जाएंगे, देयर आल्सो दे आर गोइंग, दीस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प, क्लियर है, ठीक है राइट, छोटी चीजें हैं बट दे होल्ड, देर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम मैथ्स के ऊपर, ठीक है, मैथ के कोई भी टॉपिक हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू द थ्योरी, आफ्टर थ्योरी राइट विल डिस्कस सम क्वेश्चंस विद यू गाइस, ठीक है। यहां पर आपको असाइनमेंट्स, ऑलरेडी आपके बुक में असाइनमेंट्स बनी हुई हैं, वो असाइनमेंट्स करनी है, ठीक है। दीज असाइनमेंट्स आर फॉलोड बाय द प्रैक्टिस टेस्ट, राइट। अब प्रैक्टिस टेस्ट क्या है, बेसिकली ऑलमोस्ट 10 इयर्स के PYQs हैं, 2019 से पहले के, 2019 से पहले जो मतलब पेपर हुए हैं
उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो किसमें है, प्रैक्टिस टेस्ट में, राइट। वी गो थ्रू दीज क्वेश्चन, हमने ये कर लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये कर लिया, प्रैक्टिस टेस्ट कर लिए, ठीक है। देन यू विल हैव क्या होगा, डाउट्स, क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। वंस योर डाउट्स आर क्लियर, आपको पता है कि हमने ये क्वेश्चन कर पाए हैं, हमने कंसेप्ट भी हमें क्लियर है, देन आफ्टरवर्ड्स विल गो टू द किस पे काम करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इनके ऊपर जो है हमें कमांड डेवलप करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, 2019 से लेके 2023 तक जो अभी तक एग्जाम हुए, 5 एग्जाम हुए, विल डिस्कस दोज एग्जामिनेशंस। उन पेपर्स में जो उस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम कर पा रहे हैं, मीन दैट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस कि हम कर पा रहे हैं इसको। क्लियर है बात, ठीक है। देन दिस विल बी फॉलोड बाय योर टेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, विल कंडक्ट अ टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट में जो है वो आपको अपने आप को साथ में गियर अप करना है कि हमें जब हमारा एक फिनिश होगा, विल हैव टू अपीयर इन द टेस्ट। ऑनलाइन वाले बेटा आपका भी साथ में टेस्ट होगा, तो यू हैव टू गो थ्रू इट, राइट। तो आपको भी टेस्ट में अपीयर होना है, फाइन हजमत, यस सर। ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, कंसिस्टेंट एफर्ट, ठीक है। हर एक टेस्ट में जो आपकी स्कोरिंग होगी दैट विल हेल्प यू कि आपका ये चैप्टर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग बना। क्लियर है, डन, ठीक है। चलो मैथ्स में जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा लंबा टाइम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले आपका जो है वो जैसे बेसिक टॉपिक की बात करें, जैसे अलजेब्रा है। अलजेब्रा समझते हो, क्या क्या रहता है अलजेब्रा में? अलजेब्रा में क्या क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लॉगरिथम है, बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। देन वी हैव एपी, जीपी, राइट। देन इसमें बाइनरी सिस्टम आ जाता है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, ठीक है। दिस वन कैसे आगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे, ठीक है। तो अलजेब्रा छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट दे विल हैव समवेयर अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस कमिंग आउट फ्रॉम दिस, यहां से आते हैं, ठीक है, राइट। देयर इज सेट रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम अलग कैटेगराइज करते हैं, ये चीज आ गई, ठीक है। दिस इज वन सेक्शन, ठीक है। तो इसको हर किसी को स्ट्रॉन्ग करना है, दिस इज नॉट समथिंग जिसको हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर किसी का ये अच्छा होना चाहिए, क्लियर। दूसरी चीज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, राइट। समवेयर अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अराउंड 4 क्वेश्चन, probability around 8 to 10 questions, ठीक है। Then we have set relation and function around 7 to 8 questions इसमें से आते हैं, कुछ चीजें ट्रिकी होती है, कुछ चीजें सिंपल रहती हैं इसमें, ठीक है। And then matrices and determinants again somewhere around 8 to 10 questions. This is very very important section, ठीक है। ये जो सेक्शन है आप लेके देख सकते हैं, इसमें somewhere around 35 to 40 क्वेश्चन जो है वो इसमें से बनते हैं, ठीक है, राइट। एंड दिस इज अ हाईली स्कोरिंग वन, मतलब स्टैट्स है, 8 क्वेश्चन आए जो हम करवाएंगे, आउट ऑफ 8 यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन कोई आपको परेशान करेगा, रेस्ट ऑल यू विल बी डूइंग। परमुटेशन क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है, 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी अगेन 8 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के उसमें से 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू मेंटेन। सेट रिलेशन फंक्शन में सम टाइम ट्रिकी होता है, पर 8 में से 5 क्वेश्चन आपकी पॉकेट में होंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स 8 क्वेश्चन है, 6 to 7 क्वेश्चन विल बी इन पॉकेट, राइट। सो दिस इज योर, ये दो, पहला सेक्शन और सेकंड सेक्शन, ये दो सेक्शन दे विल डिफाइन वेयर यू आर गोइंग टू लैंड। पेपर क्वालिफाई करने के लिए 100 मार्क्स के लिए ये दोनों चीजें सफिशिएंट है, इतना सा कर लोगे यू आर इन, डन, ठीक है। देन नेक्स्ट पोर्शन कम्स योर ट्रिग्नोमेट्री, सिंगल यूनिट है, लेंथी है, बट समवेयर अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है। और सिर्फ अकेला ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आगे, यस, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री मतलब सारा कुछ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है, और जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस
अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन, बढ़ भी जाते हैं कई बार 18-20 क्वेश्चन जाते हैं, अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन एप्लीकेशन उसमें से। दिस इज अगेन दीज 3 एरिया जो हमें अच्छे से स्ट्रांगली बिल्डअप करने ही करने, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है, 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, देन वेक्टर अलजेब्रा, राइट। ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें 20 to 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन। इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब चीजें आ जाती हैं। 3D ज्योमेट्री आ गई, वेक्टर अलजेब्रा, प्लेन, स्फीयर, सब चीजें इसमें कवर अप होती हैं, ठीक है। एंड फाइनल वेक्टर अलजेब्रा 20 to 25 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट ऑल कंसेप्चुअल, इसमें कुछ क्रैम नहीं करना है, सारा सारा समझना है। अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत आसान है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, राइट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज योर कैलकुलस। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 के आसपास क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है, राइट। दिस इज वन सेक्शन, मुझे नहीं पता कि आप अभी राइट नाउ मैथ्स आपका किस लेवल पे है, बट दिस इज वन सेक्शन जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, सबसे ज्यादा एफर्ट डिमांड करता है, सबसे ज्यादा आपको जो अपना बिल्डअप करना पड़ेगा, जो एफर्ट लगेगा आपको, दैट विल बी इन कैलकुलस पार्ट, ठीक है, राइट। एक सिंसियर इन डेप्थ एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस। क्लियर है बात ये, ठीक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री हम बीच में पहले करवा दें, ठीक है। इन चीजों को पहले हमने कवर करना है एंड दिस विल शुड गिव यू हेल्प यू इन स्कोरिंग 125, 100 to 125 के बीच में इन 3 सेक्शन के बेसिस के ऊपर बन जाने चाहिए, बिकॉज ये तीनों सेक्शन स्कोरिंग, ठीक है। देन व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन है जिसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कैलकुलस इज अप टू यू कि कितना एफर्ट करते हैं। मतलब कैलकुलस में कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव में से क्वेश्चन निकल जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्वेश्चन इजी आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल कई बार ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, नहीं कर पाते हम, ठीक है, राइट। तो वो चीजें हमें देखनी कि क्या करना क्या नहीं करना, कुछ चीजें आसान होंगी वो कर लेंगी, कुछ चीजें ट्रिकी होंगी शायद हम उनको स्किप करेंगे, ठीक है, बट वो बात की बात है, एक बार तो हम सारा इसमें, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड this aim of 100 to 125 marks, this has to be done before 30th of June. 30 जून तक मैथ्स का सेक्शन में 100 प्लस मार्क्स, दैट्स योर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आप यस हजम तो ऑडिबल है, सुन पा रहे नहीं? Yes, sir. ओके फाइन, राइट राइट। सो by 30th of June, right, we'll be covering up, ये सारा आपका खत्म हो जाएगा, we'll be done with this one, ये इतना पोर्शन खत्म हो जाएगा आपका, पहले 3 सेक्शंस, ठीक है, राइट। सो should be able to score in the range of 100 plus marks मैथ्स में, और इंग्लिश अगेन 120 की रेंज में आपको बाई एंड ऑफ जून आपको पहुंचना है, ठीक है। जीएस में और जनरल साइंस में जो सब्जेक्ट जितना कंप्लीट होता है उस हिसाब से हमें वर्कआउट करना है, ठीक है, बट शुड बी बाई एंड ऑफ जून हमारा स्कोर 300 प्लस पहुंचना चाहिए, दैट इज द टारगेट, ठीक है। अभी टेस्ट लेंगे 150, 200 तो स्कोर कर जाओगे अभी भी ओवरऑल, है ना, राइट। तो अब अगले 2 महीने में हमें another 100 marks we have to add up, right, and we need to reach score of 200 marks, ठीक है, डन, सेटअप इज क्लियर, ठीक है। डाउट्स आता है टीचर के साथ इमीडिएटली क्लियर कर लेना, ठीक है, राइट। सेल इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनीथिंग दैट यू फील कि ऐसा करने से हमें और बेनिफिट मिल सकता है, यू कैन स्पीक टू मैम। अक्षय सर हैं, अक्षय सर को जानते नहीं जानते आप नहीं जानते, जीएस टीच करते हैं, हर्ष सर और अक्षय सर पढ़ाते हैं, तो अक्षय सर विल टेक्स केयर ऑफ योर शेड्यूलिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो उनसे डिस्कस कर सकते हो, एंड स्टिल यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन एनी टाइम अप्रोच मी, ठीक है, राइट। बट यू हैव टू बियर इन माइंड कुछ हम डिफरेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, राइट, और उसके लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट करना पड़ेगा, इस सोच के साथ आपने एफर्ट करना, अदरवाइज क्या वी फील वन पॉइंट ऑफ टाइम हम ऐसा लगता है कि यार मतलब क्यों कर रहे हैं हम एफर्ट,
ठीक है, राइट। और जो हमारे आसपास में नेगेटिव एनवायरनमेंट, तो वो चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो उन चीजों से हमने कंफ्यूज नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वी हैव टू बी फोकस्ड। क्लियर है? यस, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, फाइन। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज दैट यू हैव इन योर माइंड? Yes, done, right? So that's it for the day, right? Rest of the classes will continue, right? 5 minute ka break hai, pani wagera peena pee lo, and we'll start with the next class. Fine? Okay, and wish you all the best for the next 4 months, right? Let's enjoy the spirit. Okay? Good day. Yes. My introduction. Okay, Harsimrat. You can Thank join you, back. sir. Yes, yes. Okay, beta, welcome. You can join back in 5 minutes time. 5 minutes फिर से join कर लेना, ठीक है बेटा? Okay, sir. Okay बेटा.